ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ we didn't choose him but he chose us। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। No doubt ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬਿਗ ਪਲਾਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਮੋਟਿਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਰਕਨੈਸ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਇਆਲੂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੈਵਨ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ मिलके प्रेयर करिए, शीश झुकाइए
अखा बंद करिए। जिंदा जलाली परमेश्वर तुहाडी पवित्र हजूरी चाहते हैं। तुहाडे वचन कहते हैं कि जदों भी पिता परमेश्वर के भवन विच दाखिल होवो ते थैंक्स करते रहो, धन्यवाद करो उन्हां। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਕਾਰਜ ਲਈ, ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। Yes, Lord. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਂधी ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਥਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਥਮੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ जी प्रभु। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। आमीन आमीन। प्रभु वचन पढ़न का समय आज असी पढ़ांगे साम 72 वर्स 70 to 19। वर्स 17 दे विच इस तरह लिखा हुआ है, परमेश्वर का नाम सदा रहे, हालेलुया। जिन्ना चिर सूरज रहे ओदा नाम वधे अते लोग उस विच बरकत पाओ, सारियां कौमां ओनू धन आखण। वर्स 18 दे विच लिखा होया है, मुबारक होवे यहोवा परमेश्वर, इज़राइल दा परमेश्वर ही सिर्फ अजिहियां अद्भुत गल्लां कर सकदा है। वर्स 19 अते ओदा तेजवान नाम सदा तीकर मुबारक होवे अते सारी धरती ओदे तेज नाल भरपूर होवे। आमीन ते आमीन। आमीन हालेलुया। शुक्रिया अदा करदे हां इन्हां प्यारे वचनां वास्ते ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾਈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ सिखाते ने कि किस तरह असी अच्छी सोच दे नाल जिंदगी व्यतीत करिए। हालेलुया हालेलुया। आओ मिलके भजन गाने आ, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया हालेलुया। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। तेज तो बरकता सब लोग पावण, तेज तो बरकता सब लोग पावण, ते कोमाओ दिया धन्यवाद गावण, ते कोमाओ दिया धन्यवाद
खुदा है जो खुदा है अजायब तम करदा तम सदा है अजायब तम करदा तम सदा है खुदा दाता है शान वाला खुदा दाता है शान वाला सदा की मुबारक हो रहेगा सदा की मुबारक हो रहेगा पिता इस बात बेटे पास रूही पिता इस बात बेटे पास रूही सदा तो है सदा की रहेगी सदा तो है सदा की रहेगी बजुर्गियों से है दुनिया के सारी बजुर्गियों से है दुनिया के सारी कहो आमीन आमीन तेरे कहो आमीन आमीन तेरे कहो आमीन आमीन तेरे हालेलुया 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 प्रस्तिष्ठता इबादत थी खत्म होता है और तुसी पास्टर जी पासों वचन सुनोगे हालेलुया 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 आइए अपने आप को तैयार करें आज के इस वचन के लिए। अपनी अपनी बाइबल अपने पास रख लें, हो सके तो अपने पास एक पेपर और पेन या कोई ऐसी चीज जिस पे आप नोट्स बना सकें वो भी रख लें। मेरा ईमान है हमेशा की तरह आज का कलाम हमारे लिए बहुत बरकत भरा होगा और आज कुछ नई बातें प्रभु अपने इस संदेश में अपने मैसेज में हमने देने जा रहे हैं जिनकी वजह से हमें बहुत बरकत मिलेगी। हम जिन मुल्कों में रहते हैं यहाँ कनाडा यूएस, यहाँ पे मौसम रोज बदलता है। एक दिन धूप होती है, गर्मी होती है, रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो बाहर झांक के देखते हैं तो स्नो आ रही होती है। इतनी तेजी से यहाँ का मौसम बदलता है। आप भी जिस मुल्क में जिस शहर से सुन रहे हैं ये कलाम, आपने भी ऐसे महसूस किया होगा कि मौसम जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले मौसम के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। अगर गर्मी होती है तो हम लोग कम कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट्स वगैरह पहन लेते हैं मर्द। अगर सर्दी होती है तो अपने आप को कोट से या जैकेट से कवर कर लेते हैं। अगर सर्दी के साथ साथ बाहर हवा भी तेज चल रही है तो अपने सिर को कवर करने के लिए हम लोग सर पे हैट भी पहन लेते हैं। बट आई एम ट्राइंग टू से कि हम घर से बाहर कभी भी पूरी तरह तैयार होके नहीं निकलते, क्योंकि बाहर के हालात के हिसाब से हमें तैयार होना पड़ता है। इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत से हमारे ऐसे विश्वासी बहन भाई हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, जो अपनी मसीह जिंदगी में आते हैं तो अपने आप को पूरी तरह
तैयार नहीं करते। इसलिए वो उस लड़ाई में जो हमारे आसपास एक जंग छिड़ी हुई है, उसमें बहुत तरह की परेशानी में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हम ये जो डिस्करेजमेंट और डिफीट की लाइफ जी रहे हैं, इस लड़ाई में शायद हमारा दुश्मन वो है जो हमें तंग कर रहा है। हम सोचते हैं मेरा दुश्मन मेरा वो बॉस है जो मुझे रोज ताने देता है, मेरी बात नहीं सुनता, मेरी प्रमोशन में रोड़ा अटका हुआ है, मुझे पे रेस नहीं देता। हम सोचते हैं हमारा दुश्मन वो पड़ोसी है जिसने सारे मोहल्ले में मुझे मुफ्त में बदनाम करके रखा हुआ है। हम सोचते हैं कि वो हमारे दुश्मन है। बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर नॉट कंपीटिंग विद दीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारी जो लड़ाई है वो इंसानों के साथ नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, योर एनिमी इज नॉट फ्लैश एंड ब्लड एट ऑल। हमारा दुश्मन मांस और खून नहीं है। प्रभु के वचन में इसकी कंप्लीट हमें जानकारी दी गई है। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्यों से नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दुष्ट आत्माओं के शक्तियों के साथ है। My brothers and sisters, our battle is with Satan. हमेशा एक लड़ाई हमारी शैतान के साथ चलती रहती है। जरूरी नहीं कि हमने कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से शैतान हमें इस लड़ाई में हराना चाहता है। शैतान का स्वभाव ही ऐसा है, शैतान का नेचर ही ऐसा है, शैतान का काम ही ऐसा है। इसलिए प्रभु के वचन में बुक ऑफ रेवलेशंस में लिखा है, ही इज द एक्यूजर ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो हमारे भाई और बहनों के पर दिन रात लांछन लगाने वाला है, एक्यूज करने वाला है। तो हमें इस जंग से जीत कैसे मिले? हाउ वी कैन विन दिस बैटल? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वी आर सो ब्लेस्ड। परमेश्वर ने हमें एक सुरक्षा कवच दिया हुआ है, हमें एक ऐसा आर्मर दिया हुआ है। अगर हम अपने आप को उससे साथ लैस कर लें तो हम इस लड़ाई में कभी भी हार नहीं सकते। शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज के प्रभु जी के इस संदेश का टाइटल है वेपन ऑफ आवर वॉरफेयर, फुल आर्मर ऑफ गॉड। वेपन ऑफ आवर वॉरफेयर, फुल आर्मर ऑफ गॉड। हमारे युद्ध के हथियार, प्रभु के संपूर्ण कवच। ये हथियार क्या है? ये कवच क्या है? इसका जिक्र आता है बुक ऑफ एफिशियंस में। अपोस्टल पॉल जी ने लिखा है, जिस समय अपोस्टल पॉल जी ने ये वचन लिखे वो रोम में घर में नजरबंद थे, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था और घर में नजरबंद होने के नाते उनके आसपास रोमन फौजी हमेशा रहते थे, उनकी चौकसी में, ताकि कुछ भी उनको मिलने ना आ सके या वो कहीं जा ना सके। इसलिए जब अपोस्टल पॉल ने इस कवच के बारे में लिखा तो उन्होंने उन फौजियों की तरफ देखा और फौजियों ने जो अस्त्र शस्त्र पहने थे उनका इस्तेमाल करके उन्होंने हमें स्पिरिचुअल आर्मर ऑफ गॉड के बारे में बताया। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10, इफिसियों अध्याय 6 और पद 10। फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर। आप प्रभु में स्थिर होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। Put the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको। फिर वर्ष 13 में लिखते हैं, 13 में लिखती हैं, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अडिग रह सको। और अब वो सारे कवच हमें दे रहे हैं, सारे हथियार दे रहे हैं। वर्स 14 स्टैंड फर्म देन विद द बेल्ट ऑफ ट्रूथ बकल अराउंड योर वेस्ट। सो अपनी कमर पर सत्य का फेंटा कस लो, सत्य की बेल्ट लगा लो। विद द बेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस इन प्लेस, और धार्मिकता की झिलम पहन लो। ब्रेस्ट प्लेट, ऊपर एक ऐसी प्लेट पहन लो जो धार्मिकता की है। वर्स 15, तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की
तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रह सको। सो यूर फीट फिटेड विद द पीस ऑफ द गॉस्पल। और अंत में 6:16 में लिखते हैं, इन एडिशन टू ऑल दिस, इन सबसे बड़ी बात क्या है, टेक द शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one। इसी ढाल के द्वारा आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। और वर्स 17 में लिखा है, टेक द हेलमेट ऑफ सॉल्वेशन, और छुटकारे का, मुक्ति का हेलमेट पहन लो, एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, और आत्मा की तलवार पहन लो, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। सो ध्यान से देखें तो अपोस्टल पॉल, संत पौलुस हमें 6 आर्मर दे रहे हैं, 6 हथियार दे रहे हैं। पहला बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य का फेंटा या बेल्ट। दूसरा ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की झिलम। तीसरा है शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते। चौथा है विश्वास की ढाल। पांचवा है छुटकारे का हेलमेट। और छठा है स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार, जो कि प्रभु का वचन है। भाई ब्रदर सिस्टर, अगर हम इन हथियारों से लैस होकर जब घर से बाहर निकलेंगे, तो जैसे मौसम हमारा कोई नहीं बाल बांका कर सकता, हमने पूरी तरह अपने आप को कवर किया हुआ, तो शैतान भी हमारे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आइए इन आर्मर के ऊपर जरा गौर करते हैं कुछ देर के लिए। सो पहला जो अस्त्र उन्होंने बताया हुआ है बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य की बेल्ट। माय ब्रदर सिस्टर, सबसे पहले उन्होंने इस बेल्ट का जिक्र क्यों किया? इसका रीजन क्या है कि अगर आप किसी सैनिक को देखें तो रोमक सैनिकों ने जो जो हथियार पहने हुए थे, अंत में उनको कसने के लिए वो एक बेल्ट पहनते थे जो उनकी कमर के ऊपर होती थी, ताकि जब भाग रहे हो, जब लड़ रहे हो, तो वो जो हथियार है कहीं गिर ना जाए। इसी तरह प्रभु हम कहते हैं कि अपने बाकी सारे हथियारों को सच के साथ कस लो। माय ब्रदर सिस्टर्स, प्रभु के वचन में सच्चाई की क्या वैल्यू है हमें बार बार प्रभु बताते हैं। जैसे प्रभु ने मैं कहा था, इफ व्हेन यू विल नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अगर आप सत्य जान जाएंगे तो सत्य आपको आजादी देगा। और प्रभु ने खुद भी कहा था बुक ऑफ यूहन्ना में, यूहन्ना की इंजील चैप्टर 14 वर्स 6, यूहन्ना 14 अध्याय और पद 6 में प्रभु ने कहा था, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता है। तो माय ब्रदर सिस्टर, ये जो बेल्ट ऑफ ट्रूथ इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि लॉर्ड जीसस ही हमारा सच है। माय ब्रदर सिस्टर, सच को जानना लेकिन सच को हर सिचुएशन में चूज करना, दो डिफरेंट चीजें हैं। बहुत ही बार जो शैतान है, जिसे फादर ऑफ लाइज कहते हैं, हमारी जिंदगी में आता है, और उसका सबसे बड़ा वेपन यही है कि हमारे सच को, जो प्रभु के वचन का सच है, उसको झुठलाने की कोशिश करता है, या उसमें ऐसी मिलावट करता है कि उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाए, हम उसके इजी टारगेट बन जाए। और माय ब्रदर सिस्टर, अगर हम दृढ़ता से खड़े होकर प्रभु के वचन के ऊपर खड़े रहें तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए माय ब्रदर सिस्टर्स, अगर शैतान को हमारे दिल में ऐसी, दिमाग में ऐसी बात लाता है जो प्रभु के साथ मैच नहीं करती, तो डिसमिस इट इमीडिएटली, उसे उसी समय में डिसमिस कर देना। अगर हमको कोई ऐसा मौका मिलता है जिससे हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन वो मौके में हमें वर्ड ऑफ गॉड को कॉम्प्रोमाइज करने का, समझौता करने का कोई काम करना पड़ेगा, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। माय ब्रदर सिस्टर, सिंपल रूल ये ट्रूथ ऑफ बेल्ट को पहनने का ये है कि अपने मन में ये धार लें, इफ दिस इज ट्रू दैट आई एम इन, इफ दिस इज नॉट ट्रू आई एम नॉट इन इट। अगर ये सच है तो मैं इसके साथ हूँ, अगर सच नहीं है तो मैं इसके साथ नहीं हूँ। अगर हम सच की ये बेल्ट पहनेंगे तो हमारी लाइफ एक इंटेग्रिटी वाली लाइफ होगी, एक अखंडता की, ईमानदारी की लाइफ होगी। और ये तभी हो सकती है जब हम ना सिर्फ सत्य को जाने, बल्कि हम उस सत्य को जिए भी, उस सत्य के पीछे चले भी। हालेलुया। दूसरा हथियार, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की झिलम। जो रोमन फौजी होते थे वो अपने दिल को कवर करने के लिए यहाँ पे ब्रेस्ट प्लेट एक पहनते थे, क्योंकि जब दुश्मन का तीर अगर दिल के ऊपर आप पे लग गया तो आपको पता है दिल कितनी सेंसिटिव चीज है, उनकी उसी समय तत्काल मौत हो सकती थी। तो अपने दिल को कवर करने के लिए वो एक ब्रेस्ट प्लेट पहनते थे। प्रभु यही कहते हैं कि हमें भी
एक ब्रेस्ट प्लेट पहननी है, लेकिन ये हमारी ब्रेस्ट प्लेट किसकी हो? ये हमारी धार्मिकता की, राइचियसनेस की प्लेट हो, ताकि अगर दुश्मन कोई फायरिंग एरोस भेजे तो उस प्लेट से टकरा के वो रिफ्लेक्ट होके वापस चले, हमारा कोई नुकसान करे। माय ब्रदर सिस्टर, ये जो धार्मिकता की बात हुई है वो हमारी धार्मिकता नहीं। वी आर नॉट राइचियस, बट वी आर राइचियस बिकॉज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह की राइचियसनेस है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। जिस दिन हमने उन्हें चुना, उनकी राइचियसनेस हमें मिल गई थी। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है 2 Corinthians chapter 5 verse 21, 2 Corinthians 5:21, यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आप प्रभु यीशु में होने के कारण धर्मी या नेक ठहराए गए हो। माय ब्रदर सिस्टर्स, शैतान ऐसे इंसान से डरता है, परफेक्ट इंसान से नहीं, जो राइट होने की कोशिश करता है इन एवरी सिचुएशन, राइट विद हिमसेल्फ, राइट विद अदर्स एंड राइट विद गॉड। यही धार्मिकता है। अगर इस तरह की हम राइचियसनेस की जिंदगी बिताएं तो वो हमसे डरेगा, हमारे ऊपर वो कोई वार नहीं कर सकता। इसलिए जब शैतान किसी तरह की कोई वर्गलाने की हमें कोशिश करे, फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई गलती हो और शैतान आके हमें बोले यू आर नॉट गुड इनफ टू बी क्रिश्चियंस, तो मसीह बनने के काबिल नहीं, तूने ये काम किया है सुबह, तो आप उनको जवाब दे सकते हैं प्रभु के वचन के आधार पे, हु विल ब्रिंग इन चार्ज अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट। जो प्रभु के चुने हुए उनके खिलाफ कौन कोई इल्जाम लगा सकता है? गॉड इज द वन हु जस्टिफाइड। परमेश्वर है जो न्याय करते हैं। हालेलुया। तीसरा अध्याय, सैंडल ऑफ गॉस्पेल, शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते। माय ब्रदर एंड सिस्टर, रोमन फौजी जब युद्ध में जाते थे तो जो वो सैंडल पहनते थे, जो वो शू पहनते थे, वो स्पेशल होते थे। उनके तले के नीचे कीलें लगी होती थी, इसलिए ताकि जब धरती पे खड़े हों तो कीलें गड़ जाती थी। जब दुश्मन सामने आता था तो उससे वहीं खड़े होके वो लड़ाई करते थे, ना वो फिसलते थे, ना पीछे हटते थे, ना स्लिप होते थे। ये उन जूतों की खासियत थी। इसी तरह प्रभु हमें कह रहे हैं कि हम वो जूता पहनते हैं जिसकी वजह से ना कभी हम भी स्लाइड होंगे, ना कभी हम स्लिप होंगे। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर पिता, अपोस्टल पॉल जी के इस वचन के द्वारा हमें यही वो संदेश दे रहे हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, ये जो गॉस्पेल ऑफ पीस है, शांति का जो ये संदेश है, ये शांति तीन तरह की है। शांति अपने साथ, शांति दूसरों के साथ, और शांति परमेश्वर के साथ। बहुत बार हम लोग अंदर से शांत होते हैं, हमारा मन ही शांत नहीं होता। कई बार हम अंदर से शांत होते हैं, मन शांत होता है, लेकिन दूसरों के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा चला रहता है। अगर कई बार ऐसा होता है हम खुद शांत होते हैं, दूसरों के साथ भी हमारी शांति होती है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा झगड़ा चलता रहता है। हम हमेशा उन्हें कंप्लेंट करने रहते हैं, बुलाने देते रहते हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, परमेश्वर ये कहते हैं कि हमें रिकंसिलिएशन करना है, हमें शांति रखनी है अपने साथ, परमेश्वर के साथ और दूसरों के साथ सुलह रखनी है। सो माय ब्रदर सिस्टर्स, हर दिन जब हम सुबह उठें तो हमें अंदर झांक के देखना चाहिए, क्या मैं अपने साथ शांत हूँ? क्या मैं दूसरों के साथ शांत हूँ? क्या मैं परमेश्वर के साथ शांत हूँ? क्या वाकई मैंने शांति का ये मुकुट पहना हुआ है? अगर नहीं है तो अपने आप को जांचे और इस अस्त्र को और स्ट्रांग करने की हम कोशिश करें। चौथा अध्याय, शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल। और ब्रदर सिस्टर्स, आप देखते होंगे जो फौजी होते हैं उन्होंने एक हाथ में तलवार ली होती है, दूसरे हाथ में ढाल ली होती है। ढाल का काम क्या होता है? ढाल का काम होता है कि दुश्मन की जो तलवार आ रही है, जो तीर आ रहा है, उसको रोका जाए, और तलवार का काम होता है उसमें वार किया जाए। तो इसी तरह प्रभु कह रहे हैं कि हम एक ढाल अपने पास रखें, वो ढाल है विश्वास की। क्योंकि जब भी शैतान आए हमें ऐसी गलत बातों से उलझाने की कोशिश करे, हमारे दिमाग में डिस्करेजमेंट डालने की कोशिश करे, इस तरह की थॉट डाले जो डाउट की हैं, जो डिस्करेजमेंट की हैं, जो डिले की हैं या डिप्रेशन की हैं, तो हमें उसको सिर्फ और सिर्फ विश्वास की शील के साथ हरा सकते हैं, वो रोक सकते हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, इन जो थॉट्स वो हमारे दिल में डालता है, डिस्करेजमेंट की या डिले की या डाउट की, उसको हैंडल करने का एक ही तरीका होता है, वो तरीका है विश्वास की ढाल। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, जब भी ऐसी कोई थॉट है, टॉक टू हिम हेड ऑन, फाइट टू हिम हेड ऑन विद दिस ढाल।
भाई ब्रदर सिस्टर, आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था। विश्वास की ढाल। विश्वास कैसे बनता है? विश्वास प्रभु के वचन से बनता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास जो है वचन सुनने से आता है। प्रभु ने वही किया था। जब भी शैतान आया था उनके पास तो उन्होंने उसको विश्वास की ढाल से हरा दिया था। जब शैतान ने कहा था अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बनाते, तो उन्होंने कहा था वचन में लिखा है, और यह कि उसे वचन सुनाया था और वो वहां से भाग गया था। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर, जितनी बार हम प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को मेमोराइज करते हैं, किसी बाइबल स्टडी में जाके नया ज्ञान लेते हैं, तो हमारी जो ये विश्वास की ढाल है ये ग्रो होती है, बड़ी होती है। आप सोच के देखिए, अगर एक फौजी के पास एक ढाल है जो सिर्फ 1 फीट चौड़ी है, दूसरे के पास जो ढाल है वो 5 फीट चौड़ी है, 5 फीट चौड़ी है, तो उनमें से किसके ऊपर ज्यादा भार होंगे? 1 फीट वाले के। इसी तरह माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, लेट अस ग्रो आवर शील्ड ऑफ फेथ बाय स्पेंडिंग टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के ज्ञान में बढ़े, प्रभु के वचन में बढ़े, प्रभु के वचन को अपने लिए तैयार करें, और इस ढाल को धीरे धीरे इतना बड़ा बना ले कि शैतान कोई वार न कर सके। 5वां, छुटकारे का हेलमेट। माय ब्रदर सिस्टर्स, जिस तरह दिल एक बहुत ही नाजुक हमारे शरीर का अंग है, इसी तरह जो माइंड है, जो दिमाग है, वो हमारे शरीर का बहुत बड़ा सेंसिटिव अंग है। अगर आप दिल को बचा भी लें, अगर कोई ऐसी चोट लगे जो सर पे लगे, कई बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट में कई इंसानों को ऐसी चोट लगी जो बाहर शरीर से नजर नहीं आती थी, लेकिन सर पे ऐसी चोट लगी कि वो कोमा में चले गए, बेहोश हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दिमाग हमारा इतना सेंसिटिव है। ये प्रभु कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मन, दिमाग को, अपने विजडम को परमेश्वर की जो साल्वेशन है, जो मुक्ति है, उसके साथ कवर कर लो, उसका हेलमेट पहन लो। माय ब्रदर सिस्टर, चाहे हमारी शील्ड, फेथ की शील्ड थोड़ी कमजोर भी हो, बाकी हथियार कमजोर भी हो, ये जो ढाल है वो हमको इटर्नल विक्ट्री दिला सकती है, क्योंकि हमारी साल्वेशन इटर्नल है। हमें जो मुक्ति मिली है हमारे किसी काम से नहीं मिली है, परमेश्वर ने अपनी ग्रेस से, अपने हमारे विश्वास हमें दी है, और ये हमसे छीनी नहीं जाएगी। इसलिए जब कभी आपको अपने मुक्ति के बारे में कोई भी डाउट हो, आपको लगे मेरे से गलती हुई, शायद मेरी मुक्ति खो गई है, तो प्रभु के इस वचन पे ध्यान रखें, साल्वेशन का हेलमेट बने। क्योंकि वो लोग जो अपने मुक्ति के बारे में गलतफहमी में रहते हैं, वो शैतान के इजी टारगेट बन जाते हैं, और शैतान उनको बहुत जल्दी हरा देता है। हालेलुया। अब आते हैं छठे और अंतिम अस्त्र की तरफ, वो है स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, आत्मा की तलवार, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, जो प्रभु के वचन है। हालेलुया। अभी तक जो हमने 5 हथियारों के बारे में पढ़ा सुना, वो हथियार थे अपने आप को बचाने के, डिफेंस के। अब परमेश्वर एक हथियार दे रहे हैं एग्रेशन का, अटैक करने का। जैसे फौजी के हाथ में ढाल होती है बचाने के लिए, लेकिन दूसरे हाथ में तलवार होती है अपने दुश्मन को काटने के लिए, मारने के लिए। ये प्रभु कह रहे हैं कि इसको अपनाओ, प्रभु के वचन की तलवार को अपनाओ। माय ब्रदर सिस्टर्स, ओरिजिनली जब इस वर्ष को जाके देखें तो जहाँ पे जो वर्ड आया, ओरिजिनल ग्रीक वर्ड आया तलवार के लिए, स्वॉर्ड के लिए, उसका मीनिंग स्वॉर्ड नहीं है। उसका मतलब है वो छोटा हथियार, तेज धार वाला, जिसे हम कटार कहते हैं। आपने देखा कटार एक ऐसी चीज होती है जो छोटी होती है। तलवार तो हम दूर खड़े होकर दुश्मन पे हमला कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, लेकिन कटार जो होती है उसके लिए अपने दुश्मन के आमने सामने आके बिल्कुल नजदीक होकर उसके ऊपर वार करना पड़ता है। माय ब्रदर सिस्टर, ये तेज धारी तलवार होती है, तेज धारी अस्त्र होता है जो आमने सामने पास खड़े होके मार के इंसान को खत्म किया जाता है। माय ब्रदर सिस्टर, इसी तरह प्रभु का जो वचन है एक ऐसी कटार है। इनफैक्ट कंप्लीट बाइबल इज नॉट ओनली कटार, वो सिर्फ कटार नहीं है। प्रभु के वचन में जो हमें वायदे दिए गए, जो डिफरेंट प्रोमिसेस हैं, ए पर्टिकुलर प्रॉमिस, ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्स इज ए कटार फॉर अस, हमारे लिए कटार है। इस तरह हमारा जो प्रभु का वचन है, जो बाइबल है, वो तरह तरह की कटारों से भरा हुआ है। छोटी कटार, बड़ी कटार, शार्प कटार, उससे ज्यादा तेज धार वाली कटार, इस तरह की है। तो जब शैतान को हम प्रभु के वचन की कटारें मार के उसको जख्मी करते हैं, वो तिलमिलाता है, वो लहूलुहान होता है, वो डर के भाग जाता है।
माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु ने यही किया था। जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा था वचन में लिखा है, ये जवाब दिया था और वो भाग गया था। अब सोच के देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह जो खुद खुदा थे, उनको वचन की जरूरत थी शैतान को हराने के लिए, तो हमें शैतान को हराने के लिए वचन की कितनी जरूरत है। हालेलुया। माय ब्रदर सिस्टर, ये जो कटार है, ये दुनियावी कटार से बिल्कुल डिफरेंट है। जो दुनियावी कटार है वो शरीर को काटने के काम आती है, लेकिन ये जो प्रभु की स्पिरिचुअल कटार है, ये हार्ट को, स्पिरिट को काटने के काम में आती है। और एक दूसरा भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो दुनियावी कटार है उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल कर करके उसकी जो धार है वो कमजोर हो जाती है, उससे फिर तेज धार करनी पड़ती है। लेकिन प्रभु के वचन इतना शार्प है, इतना शार्प है कि इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करें ये कम नहीं होता, इसकी शार्पनेस कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो सारी कटारें हैं, ये प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा अस्त्र का, मैं कहूँगा, संदूक दिया, जिसके अंदर अलग अलग साइज की अलग अलग तेज धार वाली कटारें हमें दी हैं। जितना हम इसमें बढ़ेंगे उतना हम उसमें और मजबूत होंगे। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हर इंसान को पता होता है कि मेरे में अंदर क्या कमजोरी है, और शैतान उसी कमजोरी का फायदा उठाता है। किसी को, जिसको पैसे का लालच होता है, वो पैसे के लोभ में डाल के उसको गिराने की कोशिश करता है। जिस किसी की आंखें गंदी हैं, उसको गंदगी दिखा के कमजोर करने की कोशिश करता है, उस पर वार उसी का करता है। हर इंसान को, हमें सबको पता है हमारे अंदर क्या कमजोरी है। तो प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि इन कटारों का इस्तेमाल कैसे करना है। इन कटारों को ऐसे इस्तेमाल करना है कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में मुझे शैतान कमजोर करता है, क्योंकि मेरी वो कमजोरी है, उस एरिया से रिलेटेड जितने भी प्रभु के वचन में वर्सेस हैं, उनको नोट करें, उनको कंप्यूटर में बैठ के टाइप कर लें, उनको प्रिंट करें, और अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, जहाँ कहीं भी आप अक्सर आते जाते हैं, वहाँ पे लगा के रखें, ताकि आते जाते वो जो वचन है आपको सामने दिखाई दे, वो आपके अंदर जाए, आपका विश्वास बढ़े, आपको वचन याद हो, ताकि ऐन मौके पे जब शैतान आए, इस कटार का इस्तेमाल करके उसको पूरा लहूलुहान करके वहां से भगा सके। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शैतान उस मसीह को, उस विश्वासी को तंग नहीं कर सकता जो प्रभु के वचन के साथ लैस है, जिसके साथ प्रभु का वचन है, जिसे पता है किस मौके पे मुझे कौन सी वर्स कोट करके उसे हराना है। और हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमारी पवित्र बाइबल में ऐसी एक नहीं, दो नहीं, हजारों कटारें हमें दी गई हैं। एक अनुमान के अनुसार पवित्र बाइबल में कम से कम 40,000 प्रॉमिसेस है, 40,000 कटारें हमारे पास है। हालेलुया। तो इस प्रकार प्रभु के इस संपूर्ण कवच के बारे में हमने पढ़ा, 6 उसके अंग हैं, 6 उनके अंगों के बारे में पढ़ा। तो माय ब्रदर एंड सिस्टर, आज प्रभु का संदेश हमारे लिए यही है, जिंदगी में कितनी भी तरह की टेम्पटेशंस आए, उकसाहटें आए, प्रॉब्लम्स आए, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आए, हम उन पे मुक्ति पा सकते हैं, उन पे विजय पा सकते हैं, इफ वी आर आर्म्ड विद फुल आर्मर ऑफ गॉड। अगर हम परमेश्वर के हथियार के साथ, इस कवच के साथ पूरी तरह लैस हैं। अंत में मैं एक बात कह के प्रभु का ये वचन खत्म करना चाहूंगा। प्रभु कह रहे हैं बात, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं। इस संसार में 2 तरह के लोग हैं, those who belong to light and those who belong to darkness or night। वो जो लोग जो रात में अंधेरे में हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वो ऐसे एक शराबी की तरह जो शराब के नशे में रात में धुत होके पड़ा, उसे नहीं पता कब चोर आके मेरी चोरी करके ले जाए, कब कोई दुश्मन आके मुझे मार जाए, लेकिन वो ये सोच के सो रहा है शराब के नशे में, बेसुरत होके कि एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज बैड इज गोइंग टू हैपन टू मी। बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन में लिखा है, द लॉर्ड विल कम लाइक ए थीफ इन द नाइट। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आएंगे जैसे रात को चोर चोरी चोरी आता है। 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वर्ष 3। जब लोग कह रहे होंगे कि सब कुछ शांत और सुरक्षित है, तभी जैसे एक गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव वेदना आ घेरती है, वैसे ही उन पर विनाश उतर आएगा और वे कहीं बचकर भाग नहीं पाएंगे। हालेलुया। पर वो लोग जो लोग
लाइट को बिलोंग करते हैं, जो डे को बिलोंग करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। दे आर वाइड अवेक इवन इफ देयर इज नाइट आउटसाइड। बाहर चाहे रात भी हो, दिन को जाग रहे होते हैं। उन्हें पता है प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, इसलिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करते हैं ताकि अचानक जो विनाश आने वाला है उनको खत्म न कर सके। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, नाउ व्हेन वी हैव नोन दिस डिफरेंस, जब हमें ये एक डिफरेंस पता लग गया कि जो नाइट को बिलोंग करते हैं और जो डे को बिलोंग करते हैं में क्या डिफरेंस है, तो हमें एक स्मार्ट चीज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें रात के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, हमें दिन के साथ जुड़ना चाहिए और अपने आप को ये सारे हथियारों से लैस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में एक बार भी छोटा सा भी सिन आ गया, शैतान उस छोटे से होल में उंगली डाल के उस होल को ऐसा बड़ा करेगा कि हमारी जिंदगी में आ जाएगा, हमारी जिंदगी को तहस नहस कर सकेगा। इसलिए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु का संदेश आज हमारे लिए है, लेट अस एग्जामिन आवर आर्मर टुडे। आइए अपने सुरक्षा कवच को आज ध्यान से देखें, उसे परख कर देखें उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई, देखें उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई जिसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर प्रभु का वचन, अगर प्रभु का पवित्र आत्मा आपको इस बात की गवाही देता है कि उस कवच में कोई छेद हो गया है, कोई कमी आ गई है, तो आइए हम उस छेद को, उस कमी को, उस रुकावट को, उस कमजोरी को दूर करें और उस प्रभु के संपूर्ण कवच को पूरी तरह से पहन लें, ताकि ये जो युद्ध जो हमारे चाहने से ना शुरू होगा न बंद होगा, इसमें हम शहीद ना हो बल्कि फतेह पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਸੀਹਾ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ और ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਲੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। हे साडे पिता ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ खूब ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ by saying amen and amen। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ खूब ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खूब ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खूब ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खूब ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ खूब
ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। प्रभु यीशु जिंदा है। God bless you. God bless you. God bless you.